Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Now, today was not so amazing session for the markets today, and mainly there was a strong consolidation at the top level for Nifty, and 15,600 kind of acted as a good resistance, and at the end, the index managed to close down below 15,600. The index opened with a little bit gap up about 15,630 I guess, but the index could not hold at that level. उसके बाद वहां से जो फॉल आना चालू हुआ तो निफ्टी मेटल इंडेक्स पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो बहुत शार्प फॉल आया, एंड one of the main reasons behind that particular sharp fall was that the Chinese steel mills have declared not so amazing results, and their profits have fell from what was expected by the markets, and that is one reason that our Nifty metal index also got affected for the same reason. Now stocks like JSW Steel, Tata Steel, Hindalco, all these stocks saw a heavy, sharp profit booking pressure. I think Tata Steel was the biggest loser for the Nifty 50 index today. So this was one reason, and banks were in general also very weak. SBI was doing good. SBI was doing good, but ICICI Bank it was down by 1.9%. So the private bank sector was actually not very amazing for the day, और प्राइवेट बैंक सेक्टर के अंदर काफी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है. उसके बाद भी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ही रहा, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई, एक्सट्रीम गिरावट नहीं आई in the Nifty Bank Index as well. Now, Bank Nifty was weak and consolidated mainly due to the loss of power by ICICI, and it closed down 190 points down from the opening level, and that is not actually very huge downfall if I'll say, because Bank Nifty के साथ अगर आप देखेंगे तो 500, 800, 1000 पॉइंट का मूव आना कोई बड़ी बात नहीं होती है. So 190 points down is not actually a huge downside, and yes, so the Millennial Traders क्लब TMT क्लब मेंबर्स के साथ जो स्टॉक शेयर किए थे उसमें से PEL और मुथूट फाइनेंस, इन दोनों स्टॉक्स के अंदर 100% टारगेट अचीव हुआ है, और दो और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से जो शेयर किए थे, एंड दोज वर ग्रासिम एंड कैनरा बैंक. इन दोनों स्टॉक्स के अंदर भी वी हैव बुक्ड मोर देन 50% ऑफ द टारगेट. सो दीज वर ऑल 4 stocks that were shared with the TMT club members on the Discord community server of Roaring Bulls, and congratulations to all members. Plus हमने बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेड किया था उसमें भी डिसेंट प्रॉफिट हुआ. आज मैंने अलग से कोई प्रॉफिट एनालिसिस वीडियो इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज्यादा कोई हैवी प्रॉफिट नहीं था. आई बुक्ड 7,000 रुपीज इन प्रॉफिट्स, एंड I think that was pretty much fine because looking at the index, both the indexes were consolidating, और consolidation अगर इतना है तो आपको as an option buyer दूर रहना चाहिए. ज्यादा अगर आप कोशिश करेंगे ट्रेड्स लेने की तो चांसेस रहेंगे कि आपका नुकसान हो जाए बजाय इसके कि फायदा हो. सो it's very much fine after 7 days of continuous upward movement in Nifty. Now this was the final day where the profit booking pressure was seen, and on a daily scale the candle closed in pretty much red for the day, but I mean that was expected. 15,600 15,700 level पे निफ्टी आ गया है तो एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. सो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैपेंड थ्रू आउट द डे. अभी कल के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि SBI is still looking strong, so PSU Bank index can be looked out for, and there might be some chances कि बैंक निफ्टी में रिकवरी आ जाए. हम उसको चार्ट्स पे भी अभी पूरी तरह डिस्कस कर लेंगे. Other than that, the auto sector the auto sector actually went down to close in red, not very much in red, but yes, it went down to close in red. Now mainly because the auto sales figure were not very promising. If you look at Maruti, the Maruti auto sales figure were down, so major auto stocks are seeing some profit booking pressure or some short selling, because the results in the auto stocks are not very promising for the last quarter. So this is something that had to be discussed. Now in this video we'll discuss and analyze all the levels for the Nifty and the Bank Nifty index for the upcoming trading session. So stay tuned till the end of the video and learn as much as you can. जितना आप सीखेंगे उतना आपके जीतने के चांस रहेंगे. And I'm very happy to say that the official Discord server of Millionaire Trader Club is now live. So I would want all of you to join me on the Millionaire Trader course. The first class of the day one class of the Millionaire Trader batch is going to be conducted on Saturday and Sunday this weekend, and it's going to be amazing because
I keep saying that if you want to win in the markets, you should come with a learner's mindset. Winners mindset होना जरूरी नहीं है, learner's mindset होना जरूरी है मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए, because that is how you'll actually stay disciplined. And in this video I'll also quickly show you some basic things about how the Discord community server is actually helping the traders to stay disciplined, and I'm very proud to say that it is happening very well. So stay tuned till the very end of the video, my friend. And this is Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show. Okay, so let's move ahead into the video. As you can clearly see it here, this is the Discord server of Roaring Bulls, and this is the welcome channel. These are all the getting started section of the Discord server. यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे कि आप किस तरीके से इस Discord कम्युनिटी का फायदा उठा सकते हैं. अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बहुत बेसिक चीज. निफ्टी 50 के हमने जो लेवल्स शेयर किए थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और निफ्टी के अंदर मैंने ट्रेड लेना प्रेफर नहीं किया क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन के चांस बहुत ज्यादा दिख रहे थे. बैंक निफ्टी के अंदर जरूर हमने लेवल एनालिसिस जो करी थी, दैट वर्कड परफेक्टली फाइन. एंड लेट मी शो यू. Yes, so these were the levels that were discussed for Bank Nifty Index. Can you see it here? This was our entry point and this was our stop loss, almost 1:1 risk to reward ratio, and this whole thing was booked. This almost 79-80 points of momentum was clearly booked in Bank Nifty Index by the members. So it was a pretty good day in Bank Nifty as well. मैंने भी इसी दौरान अपने प्रॉफिट्स बुक किए, मैं आपको भी दिखाता हूँ. And there were no swing trade setups for the day. Equity watch list, definitely we had 3 stocks that I told you, just the Canara Bank and the PEL Industries and the Muthoot Finance Corporation stock. So we had all these 3 here, and then there is this particular section that is I like this section over here. यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज एक जोन में मिल जाती हैं. एनी सच न्यूज दैट कैन एक्चुअली अफेक्ट योर ट्रेडिंग और अफेक्ट द मार्केट्स इज अवेलेबल right here in this one small section. So you can just stay in this section and learn a lot about things. Now the best part of the Roaring Bulls मिलियनेयर ट्रेडर क्लब कम्युनिटी इज दिस पर्टिकुलर जोन. दिस इज द मेंबर्स जोन. इस पर्टिकुलर जोन में जनरल डिस्कशंस का अगर मैं आपको आज का टैब दिखाऊंगा, यू विल बी glad to see that how beautifully people were actually having conversation with me and with the other mentors, and amongst the members also the conversation was going on. So yes, in this particular scenario it was a very good day, and a lot of members shared their P&L, and this section I love it. Why? I'll tell you. Okay, this was my profit that I just shared with the members. Can you see it here? So this was my profit for the day, 7,100 rupees. Not a very big profit. I just had a good trade in बैंक निफ्टी 35,300 कॉल ऑप्शन जो मैंने आपको अभी दिखाया, बिल्कुल वही मैंने ट्रेड लिया था, और उसके बाद मैंने फिर ट्रेडिंग नहीं करी क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था आज मार्केट के ऊपर. सो इट्स बेटर टू एंजॉय द प्रॉफिट्स रेदर देन लूजिंग दोस प्रॉफिट्स. आफ्टर दैट यू कैन सी अ लॉट ऑफ अदर मेंबर्स आल्सो हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन अबाउट द प्रॉफिट्स. या सो अदर मेंबर्स आल्सो बुक्ड गुड प्रॉफिट्स. दिस इज another member who booked good profit. Other than that, here's another member who booked good decent profit. Staying in green is the most important thing. This is one another member who actually said that he was not feeling very confident today, so he participated in the trade with a very tight stop loss. Now very good. It's a very good thing that you participated in the trade with a very tight stop loss, and see what happened here. When he lost a very small amount of 200 rupees, but the day he will win big, because that is how a option buyer works. Okay, and then another trade done by Rahul over here. So it was a good trade. He did book some good profits over here. So this is the whole thing that the Millionaire Trader community this is how the Millionaire Trader Club actually helps you to stay in discipline. क्योंकि जब आपको अपने प्रॉफिट्स किसी के साथ शेयर करने होते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आप एक डिसेंट प्रॉफिट बना रहे हो या एटलीस्ट कम लॉस कर रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकें. बिकॉज इफ यू आर लर्निंग, यू नीड टू जस्टिफाई योर लर्निंग. सो दिस इज अ ग्रेट प्लेस फॉर ऑल द people out on the TMT club. And after that, the live masterclass is already being posted over here. That will be on 5th and 6th of June. And then there is some good stuff over here, the pages like trader memes and all those things. So क्या होता है ट्रेडर के लिए, पूरे दिन बहुत टाइट माहौल रहता है. So it basically helps to actually eliminate the stress and have a small laugh or something. So this is how the whole day looked on the Millionaire Trader Club today as of now. Okay, now let me go ahead and show you what can be the potential levels for tomorrow's trading session on the Nifty and the Bank Nifty Index.
सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी इंडेक्स फर्स्ट, ठीक है। ये हम बैंक निफ्टी को खोल लेते हैं। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ दिखेगी, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक चैनल के अंदर चल रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए बहुत सारे लेवल्स हैं, इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है। लेवल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन लेवल्स के बेस पे ही आपको अच्छा ट्रेड सेटअप मिलता है। सो इफ यू कैन सी इट वेरी क्लियरली हेयर, अभी मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको लगा रखा है। सो कैन यू सी दैट हेयर, यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो रिजेक्शन आया है 35,724 से, दैट वाज द एग्जैक्ट लेवल दैट वी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज एनालिसिस वीडियो कि यहां पे रिजेक्शन आ सकता है। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ये आज का दिन है, यहां पे गैप अप ओपनिंग हुई और रिजेक्शन फेस करके एग्जैक्ट उस लेवल से इंडेक्स नीचे आना चालू हो गया। सो दिस इज द ट्रेंड लाइन दैट वाज बीइंग रिस्पेक्टेड। कैन यू सी इट हेयर, दिस ट्रेंड लाइन जो यहां पे बनी दिख रही है, दिस वाज बीइंग रिस्पेक्टेड ऑन द अपसाइड एंड दिस ट्रेंड लाइन इज बीइंग रिस्पेक्टेड ऑन द डाउन साइड। अभी क्या हो रहा है, इंडेक्स हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ एक अपवर्ड चैनल में है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स एक अपवर्ड चैनल के अंदर जा रहा है, ठीक है, एक अपवर्ड चैनल में। अभी क्या चांसेस हैं, अभी ये चांसेस हैं कि अगर ये चैनल एज इट इज पैटर्न कंटिन्यू होता है तो आपको कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में एक हायर हाई दिख सकता है। 36,000 कैन बी टेस्टेड। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल बी टेस्टेड, it's just my conviction that's saying that 36,000 can be tested, okay, because the index has recently touched the 200 मूविंग एवरेज। इफ यू कैन सी द येलो लाइन ओवर हियर, इट्स अ 200 EMA, और साथ में यहां पे हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है जिसको हम डायनेमिक सपोर्ट बोलते हैं, वो भी यहां पे अवेलेबल है। सो इंडेक्स इज एट अ एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। अभी यहां से अगर ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन भी सीरियस आ सकता है, 35,000 का लेवल इजीली आ सकता है, ओके। बट अगर हमको यहां पे ब्रेकडाउन नहीं आता और इंडेक्स सस्टेन कर जाता है इस ट्रेंड लाइन को, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट विल मूव टुवर्ड्स 36,000 फॉर अ गुड अप मूव, ओके। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी इंडेक्स की। अभी इसको हम डेली टाइम आज के टाइम फ्रेम में डिस्कस कर लेते हैं, पुराना पूरा पीछे करके। यस, सो दिस इज हाउ आवर ट्रेडिंग सेशन लुक्ड लाइक फॉर द डे। सो कैन यू सी दैट वेरी क्लियरली, इट वाज अ डाउन मूव एग्जैक्टली फ्रॉम द रेजिस्टेंस लेवल। यहां पे हम रेजिस्टेंस डिस्कस कर चुके थे, 35,724 के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस था वो यहां पे इट वाज वेरी एविडेंट ओवर हियर। सो यहां से जो डाउन मूव आया, सो इट टुक सपोर्ट एट द CPR जोन। यहां पे CPR सेंट्रल पाइवट रेंज आपको दिख रही है। मैंने आपको हमेशा क्या चीज बताई है, जब भी कभी CPR वाइड होता है, आज आपको वाइड CPR दिख रहा है, तो चांसेस हैं कि ट्रेंडिंग डे आपको नहीं मिल पाएगा, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग डे नहीं मिल पाएगा। इसी के अगेंस्ट अगर आप कल का CPR देखेंगे, कल का CPR अगर आप देखेंगे तो इट वाज अ नैरो रेंज CPR, ये दिख रहा है नैरो रेंज CPR। सो इट वाज अ प्रिटी ट्रेंडिंग डे यस्टरडे। नाउ टुमारो there are chances that we will get a narrow range CPR and we might get a trending day. I'm not sure about it, but let's see. जो भी लेवल्स होंगे मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर ही दूंगा। कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स की हम बात कर लेते हैं, ओके। सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें, मेजर सपोर्ट कहां पे आएगा? सो दिस इज द लेवल, दिस इज द लेवल 35,098, 35,098। दिस इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये अगर ब्रेकडाउन होता है तो 35,000 और 34,900 भी देखने को मिल सकता है। अदर देन दैट, दिस होल जोन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट लेवल। ये आपका एक सपोर्ट, लेट्स कॉल दिस सपोर्ट 2 एंड लेट्स कॉल दिस सपोर्ट 1, ठीक है। तो यहां पे भी एक सपोर्ट है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हो सकता है यहां से बाउंस करके इंडेक्स आपको ऊपर जाता हुआ दिख जाए। जस्ट इन केस अगर मेजर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर आपको प्राइस एक्शन का वेट करना होगा और फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। इन केस मेजर गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो चांसेस हैं कि फिर इंडेक्स में स्ट्रेंथ वापस आ जाए। अगर मान लीजिए 35,579 के ऊपर या उसके आसपास 100, 200, 250 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो चांसेस है कि इंडेक्स थोड़ा नीचे आए, ट्रेंड लाइन टच करके वापस ऊपर बुलिश हो जाए, ओके। बिकॉज द PSU बैंक इंडेक्स इज स्टिल लुकिंग प्रीटी स्ट्रांग विद वी कैन सी दैट इन द SBI बैंक। सो यस, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। रेजिस्टेंस की अपसाइड पे बात करें तो देखिए एक रेजिस्टेंस तो यहां पे आपको मिल जाएगा 35,579 पे और सेकंड रेजिस्टेंस 35,724 पे। ये R1 और R2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गए। क्यों है R2 इंपॉर्टेंट? क्योंकि आज यहीं से मेजर रिजेक्शन आया है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, ओके। सो दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स। अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। देखिए निफ्टी में अगेन इतना वाइड CPR था और जितना वाइड CPR उतना ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन। इसी के अगेंस्ट अगर आप कल का CPR देखेंगे, देखिए कितना नैरो CPR है और क्या जबरदस्त ट्रेंडिंग मार्केट था कल। बट आज क्या हुआ,
इट्स अ 3 गुना 4 गुना ज्यादा वाइड CPR है आज। और उसके बाद आप जरा देखिए, इट वॉज प्रिटी मच वोलेटाइल डे विद अ साइडवेज मार्केट। एक्चुअली रेंज बाउंड मार्केट था, अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं CPR और 15607 का जो लेवल था, इसके बीच में पूरा दिन मार्केट ट्रेड करता रहा। सो नॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप रेंज बाउंड मार्केट का एक और सिंपल सा देखने का तरीका, अगर आप 50 मूविंग एवरेज को भी देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज इज एक्चुअली ट्रेडिंग फ्लैट। So this flat trading of 50 moving average is a very clear indication that it was a range bound market. Now what can actually happen is, अब यहां से देखिए एक चीज आपको दिखाता हूं मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं अभी यहां से क्या होने के चांसेस हैं, इसको मैं आपको समझाता हूं। निफ्टी भी है तो एक अपवर्ड मोमेंटम के अंदर ही, ठीक है, निफ्टी भी अपवर्ड मोमेंटम के अंदर। अगर आप देखेंगे तो इट इज क्लियरली मेकिंग अ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड अगेन अ हायर लो, देन हायर हाई, हायर लो एंड देन हायर हाई, हायर लो। अभी चांसेस हैं कि आपको एक नेक्स्ट हाई मिल जाए। देयर आर सम चांसेस अगर सीवियर प्रॉफिट बुकिंग अंदर किक इन नहीं करती है तो। देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी भी 200 EMA पे सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको 200 EMA पे सपोर्ट। सो अगेन दिस इज अ गुड साइन दैट निफ्टी कैन move back up from here, और there are some chances कि 200 EMA पे फिर आके सपोर्ट ले निफ्टी, and 200 EMA is standing nearly around 15,524, बहुत दूर नहीं है करंट लेवल से, ठीक है। तो आपको एकदम बेयरिश नहीं हो जाना है। देखिए बेयरिश होने जैसा अभी कुछ भी साइन है नहीं मार्केट के अंदर। जो बबल बना हुआ है और बबल बर्स्ट हो जाएगा, इस तरीके की बातों पे आप डायरेक्टली जो है अपनी एनालिसिस ना बनाएं, क्योंकि प्राइस एक्शन जो बोल रहा है आपको उस पर विश्वास रखना है। बबल है नहीं है क्या है वो सब प्राइस एक्शन बता देगा। सो बिलीव ऑन द प्राइस एक्शन थिंग, ओके। यहां पे आपका 200 मूविंग एवरेज काफी करीब है प्राइस के। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल कम डाउन, टेक सपोर्ट फ्रॉम 200 मूविंग एवरेज एंड इट विल बाउंस बैक अप, ओके। सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। लेट मी टेल यू द लेवल्स फॉर टुमारो। कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा अगेन 15,607 R1 और 15,656 इज गोइंग टू बी R2। दीज आर गोइंग टू बी टू इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंसेस फॉर टुमारो। सपोर्ट की अगर बात करें तो यहां एक डिसेंट सपोर्ट है 15,524 पे, बहुत मेजर सपोर्ट नहीं है, ओके इश सपोर्ट है, ओके। एंड देन यू हैव अ गुड सपोर्ट प्लेस्ड एट 15,456, ठीक है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये आपके निफ्टी के लिए कल के ट्रेडिंग लेवल्स हो गए। अब हम एक काम करते हैं, क्विकली ग्लोबल मार्केट्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो अभी दिख रहा है। जो यूरोपियन मार्केट है, दोज आर ट्रेडिंग नियरली ऑल टाइम हाई, वेरी नियर टू ऑल टाइम हाई। आई थिंक दे आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई itself. Let me just do one thing. Let me just open it up and we'll see. So yeah, the global markets, I think it's opening up. Yes. So the global market, European markets have shot up significantly. They have shot up significantly. European markets are trading very high. Now let's look at India VIX. India VIX कल 16.8 के आसपास चला गया था. Today it is up by 3%. So अभी भी है तो 18 के नीचे ही, 20 के नीचे ही है. It's pretty much a good sign for the bulls to stay strong. So there's no major problem in terms of India VIX as well, okay. And at this particular moment, when we are talking, the US market is not open yet, so we cannot discuss about that. Other than that, things look fine on the global front. I think nothing bad to see here. So what I can assume, looking at the whole thing, is that the profit booking pressure was there today because the market was moving continuously up from past, a good up move was there from past 2 trading sessions, and in general the market was moving on the upside from past 7 trading sessions. So it had to come one day, and today was that kind of day. अभी कल हो सकता है आपको वापस एक अप मूव देखने को मिले, और नहीं तो फिर प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। बट जो भी होगा, लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, एंड आई होप टू सी यू ऑन द डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ऑफ द TMT क्लब, एंड यू आर गोइंग टू लव इट over here because the Millionaire Trader course and the Millionaire Trader club are basically meant to make you more disciplined and more educated towards your trading decisions. So I hope to see you there on the Millionaire Trader course, because learning is the key to earning, my friend, because you should really stop gambling into the markets and really start earning with good discipline. So I think you liked the video. I really wish that you will subscribe to this channel and share it with your friends, fellow traders and family members who are into stock market trading, so that they can learn about the whole intraday trading stuff, okay. So this is Pratksh Bhargav. Thank you for listening to me. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.